أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. آج الیوم آج احل لکم الطیبات پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی. پاکیزہ چیز میں ہم لوگوں کا خیال جو آتا ہے وہ صرف کھانا پینا، لیکن یہ لفظ اتنا جامع ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو وہاں بھی یہ سود کرتا ہے. مثلا ہمیں شادی کرنا ہے تو اگر کوئی خاتون شریف ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے تو وہ بھی پاکیزہ ہے، حالانکہ وہ کوئی چیز نہیں ہے جسے کھایا پیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ لفظ جو ہے یہ صرف کھانے پینے کی طرف ذہن نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہر اس چیز کی طرف جو انسان کے لیے مفید اور سوٹ کرنے والا ہو. مفید کا مطلب اس سے کوئی فائدہ پہنچے، اور سوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچائے. مثلا مٹی ہے، پاک ہے، لیکن اس کو کھائیے ذرا، سوٹ کرے گا آپ کو؟ آپ بیمار نہیں ہو جائیں گے؟ آپ کا پیٹ اور معدہ خراب نہیں ہو جائے گا؟ پاک ہے اسی لیے ہم اس سے تیمم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو کھا نہیں سکتے. تو طیبات کی جو معنویت ہے، ایک تو نفع بخشی اور دوسرے پاکیزگی. اگر نفع نہیں ہے، ہم کھاتے ہیں اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تو پھر وہ چیز بظاہر حلال ہونے کے باوجود استعمال کرنا درست ہے. ٹھیک ہے، تو کہا گیا آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی. اب یہ بات کہی کیوں گئی، یہ بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں اتنی چیزیں ہیں کہ ہم کو معلوم بھی نہیں، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اور اس میں سے کون سی چیز ہمارے لیے نفع بخش ہے اور سوٹ کرنے والی ہے وہ تو تجربے سے معلوم ہوگا. اب پتا چلا کہ ہر چیز کا اگر ہم تجربہ کر رہے ہیں تو تجربہ کرتے کرتے ہی زندگی گزار جائے گی، اور یہ طے نہیں ہو پائے گا کہ کیا نفع بخش ہے، سوٹ کر رہی ہے اور کیا نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے وہ چیزیں جو ہمارے لیے دو دو چار کی طرح نقصان دہ ہو سکتی تھی اس کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا کہ یہ حرام، اور اس کے علاوہ ہر چیز کو حلال کے کھاتے میں ڈال دیا. گویا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے پاکیزہ ہے، الا یہ کہ
किसी वजह से वो हमको नुकसान पहुंचाए तो उस वक्त मोहतात रहना चाहिए। जैसे आम हालात में हम हर चीज खाते पीते, लेकिन अगर बीमार हो तो हर चीज नहीं खा पी पाते, इसलिए कि सेहत को नुकसान पहुंचता है, डॉक्टर कहता है ये मत खाना, ये मत खाना। ये कहने का मतलब नहीं कि वो हलाल नहीं, ये मत इस्तेमाल करना, उसके लिए नुकसानदेह, उसके लिए नुकसानदेह। तो वैसे ही बात चीजें ऐसी हो सकती हैं जो अपनी जगह हलाल हो, उसूली तौर पे उसका हुक्म वही रहेगा, लेकिन हमारे लिए वो नुकसानदेह हो तो हमें उससे मोहतात होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे फल फूल हैं, आम हालात में अपनी जगह वो हलाल हैं, पाकीज़ा हैं, अगर हमें जरूरत हो तो हम उसे खा सकते हैं, लेकिन हमारा हाजमा उतना मजबूत नहीं जितना जानवरों का होता है कि वो घास खा लें, पत्ते खा लें, कुछ भी खा लें, सब हजम, हम खाएं तो हजम नहीं होगा। ऐसी सूरत में हलाल होने के बावजूद भी हमें मोहतात रहना होता है। तो ये अल्लाह ने गोया एक उसूली बात कह दी जो कामन हो सकती थी, हर एक पर किस्मा हो सकती थी, और अगर कहीं कुछ मामूली सा जरर आता है तो वो हमारे आप के लिहाज से है कि हम खुद तय करें, उसकी वजह से ये जरूरी नहीं कि वो हराम हो गई। बहुत सारी चीजें हमें पसंद नहीं, हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन अपनी जगह हलाल है। अल्लाह के रसूल को बात चीजें पसंद नहीं थी, नहीं इस्तेमाल करते थे, लेकिन हलाल था, जैसे गौ के बारे में आता है। उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, वतआमुल्लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लल लकुम, और वो लोग जिन्हें इससे पहले किताब दी गई उनका खाना भी क्या है, हलाल है तुम्हारे लिए। एक तो हिल्लत और हुर्मत होती है खुद उस चीज के असर की वजह से, और एक हिल्लत और हुर्मत जो है उसके असर की वजह से नहीं होती, बल्कि उसके साथ हमारे सलूक की वजह से होती है। मसलन जानवर हलाल है, गाय भैंस बैल सब, लेकिन अगर अल्लाह के नाम पे हम ज़बह नहीं करें, गैरुल्लाह के नाम पे करें तो हलाल है नहीं। उसूली तौर पे वो हलाल है, लेकिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा हिदायत ये है कि उसको अल्लाह के नाम पे ज़बह करो, अल्लाह के नाम पे क्या करो, ज़बह करो, फिर इस्तेमाल करो। अगर वो गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह होता है तो फिर वो हलाल नहीं रह जाता। अब हम मोमिन हैं, मुस्लिम हैं, हम तो अल्लाह के नाम पे ज़बह करेंगे, लेकिन जो मोमिन और मुस्लिम नहीं है, काफिर और मुशरिक हैं, वो अल्लाह के नाम पे तो नहीं ज़बह करेंगे। अब अगर वो अल्लाह के नाम पे नहीं ज़बह करेंगे तो ज़ाते खुद वो चीज गर्चे हलाल है, लेकिन हमारे लिए हलाल नहीं होगी। इसीलिए अगले जुमले में ये वजाहत की जा रही है कि जो चीजें हलाल, उसके हवाले से एक उसूल ये भी है कि अगर तुम उस ज़बह करो तो वो हलाल, और नहीं करो, किसी और के नाम पे करो अल्लाह को छोड़ करके, तो वो हलाल नहीं। अब एक सवाल पूछ सकता था कि वो लोग जो पहले अल्लाह के मानने वाले थे लेकिन उनके अंदर बिगाड़ आ गया, तो अब उनको किस खाते में रखें? जो सिरे से मुशरिक हैं, काफिर हैं, इनकार करते हैं, अल्लाह की बड़ाई को तस्लीम नहीं करते, उनके बारे में तो क्लियर। लेकिन ये लोग जिनका मामला थोड़ा झोल झाल वाला या मुबहम है, दावा भी करते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के साथ शरीक भी करते हैं, तो अब उनके बारे में ये कहा गया कि उनका खाना भी क्या है, हलाल, यानी उनका ज़बह किया हुआ, उनका पकाया हुआ, इसलिए उसूली तौर पर वो अल्लाह को तस्लीम करने वाले, बिगड़े जरूर है। उसी पर कयास करके हमारे यहाँ जो बहुत सारे ग्रुप है ना, जिनके अंदर बहुत सारी खुराफात पाई जाती है, लेकिन वो भी अल्लाह के नाम पे ज़बह करते हैं, तो उनका ज़बीहा भी दुरुस्त होगा, वरना फतवा तो देने के लिए हमारे उलमा दे देते हैं। एक चीज और मौलाना, एक हमारे उलमा दे देते हैं, क्या दे देते हैं, बरेलवी काफिर,
देवबंदी काफिर, शिया काफिर। अब अगर वो काफिर हैं, मुशरिक हैं, तो उनका ज़बीहा भी हराम होना चाहिए। खाते सब है, सबका ज़बीहा इसी उसूल के तहत कि खराबी जरूर है, बिगाड़ जरूर है, लेकिन जब अहले किताब का हलाल है, उसूली तौर पे वो तस्लीम करते हैं अल्लाह की बड़ाई को, तो इनका भी हलाल है, होना चाहिए। हाँ, क्या सवाल कर रहे थे? जी, अगर गैर मुस्लिम है, हाँ, नॉन मुस्लिम है और अल्लाह के नाम पे ज़बह कर दे, गैर मुस्लिम है और अल्लाह के नाम पे तबा कर दे तो भी नहीं होगा, इसलिए कि गैर मुस्लिम है जरूर, लेकिन वो तस्लीम करने वाला नहीं ना है। नहीं। असल बात है तस्लीम करना। शिर्क में मुब्तला तो ये अहले किताब भी हैं, लेकिन तस्लीम करने वाले इसलिए उनका हलाल किया गया, और मुशरिक और काफिर तस्लीम करने वाले नहीं, इसलिए उनका हलाल नहीं किया गया। तस्लीम करना बेसिक शर्त है। तो ये लोग जो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला है, गरचे अल्लाह के नाम पे दबा करें लेकिन तस्लीम नहीं करते, इसलिए उनका ज़बीहा भी दुरुस्त नहीं होता। ठीक है जी जी। हाँ तो अपन अपने हाथ से जो है उसको हलाल करते हैं, तुम ही हलाल करो, वो सिर्फ पकाते और दावत देते हैं, तो क्या फिर वो जिसको अपन ने ज़बह किया है लेकिन दावत दूसरे की है, गैर मुस्लिम की है, हाँ, वो खा सकते हैं? वो उनकी मर्जी, उनको अगर पसंद है खाना चाहे तो खाएं, उनको नहीं, हम खा सकते हैं। नहीं हम असल में हमने दबा किया है और हम खा, गोया दबा करने वाले हैं तो गोया हमने हमारे तरीके पे दबा किया है, अब वो तो हो गया हलाल। पैसा उनका लगा है, अब पैसा उनका लगा है तो अब वो एक दूसरा मसला आ जाता है कि किसी काफिर और मुशरिक की दावत कबूल की जा सकती है, उनकी दावत कबूल की जा सकती है, उनके यहाँ खाया जा सकता है ना। जब उनकी दावत कबूल की जा सकती, खाया जा सकता है, उन्होंने हमारी रियायत में हमसे ज़बह करवाया, तो फिर हरज क्या है? वो खुद करते तो हम नहीं खाते। हाँ मालूम है कि हराम की कमाई है, यस, तो उसमें तो एहतियात जरूरी है ना। वो तो कोई भी चीज हराम वाली है वहां तो बचना चाहिए। अपना भाई भी हो अगर वो हराम कमा रहा है उससे भी बचना चाहिए, क्या जाए कि कोई काफिर और मुशरिक हो, हराम तो हराम, बचना चाहिए उससे। इस वक्त अहले किताब में सिर्फ खुले तौर पर ईसाई रह गए हैं, यहूदी तो नहीं बोले जा सकते ना इस वक्त। हाँ बोलिए बोलिए, सवाल वही पहले। मतलब सिर्फ ईसाई ही रह गए हैं ना अहले किताब में। क्यों यहूदी क्यों नहीं है? आप कौन है जो उनको अलग कर रहे हैं अहले किताब से? यहूदी भी तो पाए जाते हैं आज दुनिया में, ईसाई भी पाए जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कोई कम बिगड़ा है कोई ज्यादा बिगड़ा है, ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे ना। तो है ये कि हुक्म तो उनके अपने सोच और थिंकिंग के लिहाज से है। उनमें भी अब बहुत सारे ग्रुप हो गए, यहूद में भी और ईसाइयों में, तो अब उसमें जो माकूल थिंकिंग के हैं उनके लिए ये हुक्म है, और जो इंतहाई थर्ड क्लास है उनके लिए ये हुक्म छोड़ना है, सीधी साधी बात। लेकिन हम ये कहते हैं कि आज से ईसाई रह गए, यहूदी खत्म हो गए, वो सब थर्ड क्लास ही वाले हो गए, ये कोई जरूरी नहीं। उसमें भी 19-20 हो सकते हैं। उसको समझने के लिए मैं बताता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तो सब थे और सब बिगड़े थे, लेकिन उन्हीं बिगड़े लोगों में से कुछ माकूल भी थे जिनकी समझ में आया तो ईमान लाए, और बेशतर गैर माकूल थे जिनकी समझ में नहीं आया, ज़िद और तासुब की वजह से वो ईमान नहीं लाए। तो ऐसा हमेशा मुमकिन, ठीक है जी। तो कहा गया व तामुल लदीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, अहले किताब का खाना भी हलाल है। अब यहां पर एक और पहलू है समझने का कि जब अपने और गैर का फर्क करते हैं तो कोई भी गैर को अपने लेवल पे तस्लीम नहीं करता, कोई भी गैर को अपने लेवल पे तस्लीम नहीं करता, गैर को गैर ही ठहराता है। ये इस्लाम की वुसअत है कि उनके बिगाड़ और उनके खराबी के बावजूद
इस तरह के बेसिक मामलात में उनको इक्वल स्टेटस दिया। हम दबा करें तो हलाल, वो दबा करें तो हलाल। ये इक्वल स्टेटस जो दिया है ये इस्लाम की वुसअत है, इस्लाम की आला ज़र्फी है कि उसने इस कदर उनको तस्लीम किया। उसके बावजूद सब इल्जाम धरते हैं कि ये लोग मुतासिब होते हैं, ये लोग मुतशद्दिद होते हैं, ये लोग ये होते हैं, वो होते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? वतआमुकुम हिल्लुल लहुम, और तुम्हारा खाना उनके लिए भी हलाल है। अब उनके ऊपर है कि वो खाते हैं कि नहीं खाते, वो उनके ऊपर है। लेकिन तुमने चूंकि अल्लाह के नाम पे दबा किया और वो ज़बीहा हलाल होता है, इसलिए वो खाना चाहे तो खा सकते हैं। इस बात की वजाहत की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि उसूली तौर पर जानवर को ज़बा करने की हिदायत और अल्लाह के नाम पे ज़बा करने की हिदायत हर शरीयत में रही है। उनकी शरीयत में भी थी, हमारी शरीयत में भी। तो अब हमारी शरीयत में अगर है तो ये कोई नई चीज नहीं है, गोया पहले से ये चीज चली आ रही है, तो उनको इसको अपोज नहीं करना चाहिए, इसे तस्लीम करना चाहिए। और वो खाना चाहे तो खाएं, लेकिन उसके बावजूद जिद पे आते हैं, नहीं खाना चाहते मत खाएं, कोई जबरदस्ती तो है। इसलिए ये वजाहत की गई कि वतआमुकुम हिल्लुल लहुम, तुम्हारा भी क्या है, हलाल है। इसलिए कि तुम उसी तरीके पे ज़बह करते हो जो तरीका पहले उनको बताया गया था, आज तुमको बताया गया। ठीक, ये तो हो गया खाने पीने की चीजों के हवाले से। अब है बरतने के हवाले से। क्या है? वल मुहसनातु मिनल मोमिनात, और मोमिन औरतों में से अपने इस्मत की हिफाजत करने वाली। मोहसिना किसको कहते हैं? जो अपने इस्मत की हिफाजत करने वाली। तो मोमिन औरतों में से जो अपनी इस्मत की हिफाजत करने वाली हो वो तुम्हारे लिए हलाल। अब कोई फाहिशा है, दानिया है, उसको कौन पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद करेगा। उससे बचना ही चाहिए, इसलिए कि वो तो खतरनाक है। तो ये असलन ये पैगाम है कि हर औरत को अपनी इस्मत की हिफाजत करनी चाहिए, और वो करे, ये उसकी खूबी है, और उसकी वजह से उसको कबूल किया जाए, ये एक मेयार और पैमाना है। ठीक है। अब सवाल ये था कि मोमिन में से अगर इस्मत की हिफाजत करने वाली हैं तो उसको तो हम ले लें, और अगर किसी और के यहाँ इस्मत की हिफाजत करने वाली है तो कहा गया कि अहले किताब में से भी अगर इस्मत की हिफाजत करने वालियां हैं तो उनसे भी निकाह दुरुस्त है। अलबत्ता अहले किताब के अलावा दूसरों के दरमियान चाहे वो अपनी इस्मत की हिफाजत करने वाली हैं, लेकिन उनसे निकाह दुरुस्त नहीं है। वजह क्या है? वजह सीधा साधा ये है कि हमारे नजदीक सबसे बेसिक मसला तौहीद है। हमारे नजदीक सबसे बेसिक मसला क्या है? एक अल्लाह की किबरियाई को तस्लीम करना है। अमली कमजोरियां तो हो सकती है, दुनिया दारुल इम्तिहान है, उसमें इंसान अप डाउन होगा ही, लेकिन उसूली बात यह है कि वो अल्लाह की किबरियाई को तस्लीम करता है तो वो गोया अपना एक अलग स्टेटस रखता है, अपनी अलग एक पहचान रखता है। तो अगर कोई इस्मत की हिफाजत करने वाली खातून है, वो अपनी एक अलग पहचान रख रही है अगर अहले किताब में से, उसूली तौर पे वो तौहीद के उसूल को तस्लीम करने वाली है, इसलिए उससे निकाह दुरुस्त है। लेकिन क्योंकि इंसान पे अमल के असरात भी पड़ते हैं, अगर वो इस्मत की हिफाजत करने वाली नहीं है तो फिर उससे निकाह दुरुस्त नहीं, चाहे वो हिफाजत ये क्या कहते हैं बिगाड़ ओपन हो या छुपा हुआ हो। क्या हो? ओपन हो या छुपा हुआ हो, उसी को आगे बताया गया। क्या बताया गया?
غیر مصافحین ولا متخذی اقدان. لائن چھوٹ گئی. نہیں لائن چھٹی تھی نہیں، اصل میں ہے یہ کہ چاہے مومن خاتون سے نکاح ہو چاہے اہل کتاب خاتون سے نکاح ہو، نکاح ہونا شرط ہے اور مہر دیا جانا شرط ہے. اذا آتیتموہن اجورہن، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے. بغیر مہر کے کوئی نکاح درست نہیں ہوتا. اگر نہیں بھی طے کیا جائے تو وہ آٹومیٹک لازم ہو جاتا ہے، نہیں طے کیا جائے تو بھی، اور اتنا لازم ہوتا ہے جتنا اس کی بہن یا ماں یا قریبی رشتے دار کا ہو، اتنا اس کا فرض ہو جاتا ہے، اتنا شوہر کو دینا ہی دینا ہے. نہیں دے تو اسے زبردستی دلوایا جائے گا. نکاح کا لازمی پارٹ یہ، اس لیے اس کا تذکرہ ہے یہ بیچ میں. اذا آتیتموہن، چاہے تم اہل کتاب کی عورتوں سے کرو چاہے مومن عورتوں سے کرو، لیکن اگر تم مہر دیتے ہو تب تو ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہوں گی. اب مہر نہیں دیتے ہو تو وہ حلال نہیں ہوں گی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اسے مہر نہیں دینی ہے، گویا وہ زانی ہے. گویا وہ کیا ہے؟ زانی ہے، زنا کرنے والا ہے. اس لیے کہ ویسا ہی تو ہو گیا. یہ جملہ میں نے چھوڑا اس لیے تھا کہ اصل میں اگلا جملہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. ریلیٹڈ کیسے ہے؟ ریلیٹڈ ایسے ہے، کسی عورت کو دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، مرد کو نہیں دیکھا جائے گا. یہ جو آگے آیا محسنین، عصمت کی حفاظت کرنے والے کی حالت میں، یعنی تم کو بھی اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے. اسی نیت سے نکاح کرو. مستی اتارنے کے لیے یا کسی اور سے بھی آشنائی اور ادھر نکاح کر کے دھوکہ دے رہے ہو، یہ سب نہیں چلے گا. یہ سب نہیں چلے گا. تو یہ اصل جو محسنین آیا ہے یہ نکاح کرنے والے کے لیے مذکر ہے، یہ محسنات مؤنث ہے. تو یہ جو مرد جو نکاح کرنے والا ہے اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے اور اسی کی غرض سے نکاح بھی کرنا چاہیے. اور اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ غیر مصافحین، مستی نکالنے والا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس سے کہہ دیا گیا تو آٹومیٹک عورت کے حوالے سے بھی ہو گیا کہ وہ بھی فاحشہ نہیں ہونا چاہیے اور اڈے اور چکلے پہ زندگی گزارنے والی نہیں ہونی چاہیے، اور ایسی سے نکاح نہیں کیا جانا چاہیے. یہ جو ہے یہ تو اوپن شکل ہو گئی جو اڈوں اور چکلوں پہ بدکاریاں ہوتی ہیں. ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی نکاح کرنے والے کو کیا ہونا چاہیے؟ اخدان کو پکڑنے والا. لفظی معنی یہ اتخاذ، اخذ مانے پکڑنا لینا ہے نا، اور اخدان کہتے ہیں اس چیز کو، خاتون کی جو عصمت ہوتی ہے اس کو. لیکن یہ عصمت چوری چھپے، ڈھکے چھپے کسی سے آشنائی کی جائے. ایک تو یہ ہے کہ اوپن ہو، اس میں لوگوں کو لاج شرم نہیں ہوتا، وہ بھی بک چکا ہوتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ کسی سے ہم تعلق قائم کریں لیکن یہ کوشش کریں کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اس تعلق کو کہتے ہیں ولا متخذی اقدان، یعنی یہ کہ آپ نے ایسا تعلق قائم کیا کسی آپ اور وہ جانتے، تیسرا کوئی نہیں جانتا، چوتھا کوئی نہیں جانتا. یہ جو کلب ہوتے ہیں، قہوہ خانے ہوتے ہیں، یہاں تو اس کو چلانے والے بھی جان رہے ہوتے ہیں اور ان کی انکم ہو رہی ہوتی ہے. 500 بار گھر ہوتے ہیں، وہاں تو پورا دھندا ہوتا ہے، وہاں بہت سارے لوگ جاننے والے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی اجتماعی معاملہ ہوتا ہے تو اور بہت سارے لوگ جاننے والے ہوتے ہیں. تو وہ ایک اوپن شکل ہوئی، اور ایک چھپی شکل کہ صرف وہ دو جو کسی برائی میں ملوث ہیں وہ ایک دوسرے کو جاننے والے، وہ صرف ایک دوسرے سے اپنا ربط اور تعلق بنائے تھے. اس کو کہا گیا متخذی اقدان. اب ایسا مرد کو بھی نہیں کرنا چاہیے
जी और ऐसा औरत को भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मर्द के हवाले से बताया गया कि उसे मस्ती निकालने वाला नहीं होना चाहिए, उसे छुपकर आशनाई करने वाला नहीं होना चाहिए। सीधा साधा मतलब यह है कि किसी औरत को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसी है उससे फिर निकाह का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब एक टेक्निकल सवाल है कि कहीं किसी से ऐसी गलती हो गई और बाद में एहसास हुआ, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? उसका निकाह नहीं होगा, उसकी शादी नहीं की जाएगी और नहीं बिगड़ेगी। इसी सवाल का जवाब सूरह नूर के अंदर है ना। अज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानिया, ज़ानी का निकाह नहीं होगा मगर ज़ानिया से। ये दोनों चूंकि एक दूसरे से रब्त बना चुके हैं इसलिए ये गवारा कर सकते हैं, सुधरने के बाद भी एक दूसरे के साथ बकिया जिंदगी गुजारने, लेकिन दूसरे लोग शायद आसानी से गवारा ना करें, इल्ला ये कि किसी के बारे में पता ना चले, किसी के बारे में पता ना चले। तो इस तरह की चीजों को छुपाना भी चाहिए, है ना। और अल्लाह भरोसे अगर बात बनती है किसी से, अब आज की जिंदगी उसकी सुधरी हुई है तो निकाह उसका किसी भले मानुस से भी किया जा सकता है। अब आप कहेंगे ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? फतवा तो दे दिया, मौलवी साहब का फतवा सब लोगों को सुनाया जाएगा, कहाँ पे ठीक है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ। देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक बूढ़ा शख्स था, एक शख्स आया और उसने पूछा, मेरी बच्ची थी और उससे इस तरह की गलत हरकत की थी और अब वो सुधर गई है, उसका निकाह का पैगाम आया है, तो क्या सामने वाले को मैं ये सारी बात बता दूं? उमर रज़ी अल्लाह बहुत डांटते हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी ही सजा करूंगा। जो चीज छुपी है उसे छुपी रहने दो, और जो चीज इस वक्त के जाहिर है वो ना सिर्फ बताओ, उसे इत्मीनान है तो करे, नहीं कहने इत्मीनान है मत करे, है ना। जब अल्लाह बहुत सारे बंदों के बहुत सारे अयूब को छुपाता है, सत्तारुल अयूब है, तो तुम क्यों जबरदस्ती जाहिर करने जाओगे जब अल्लाह ने अभी छुपाए रखा है उसको? इससे ये नतीजा निकलता है ऐसी कोई सूरत अगर है तो वहां छुपाया भी जा सकता है, अच्छी उम्मीद और अच्छी तवक्को पर। लेकिन अगर कभी राज खुल जाए तो हकीकत पसंद होकर के मान लेना चाहिए, बिला वजह उलझना नहीं चाहिए कि जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे एक सवाल और पैदा होता था, है ना, कि ये जो इतनी इजाजत और छूट दे दी गई है तो इससे तो मसाइल पैदा होंगे, इसलिए कि जाहिर है वो दोनों 100% हम ख्याल तो है नहीं। एक मोमिन एक अहले किताब खातून से शादी करे तो दोनों 100% हम ख्याल तो है, कुछ तो कमी है उनके यहाँ जो खूबी की इस्लाम और ईमान वालों के यहाँ पाई जाती है, तो निबाह में कहीं ना कहीं मसले पैदा होंगे। लेकिन इस तवक्को पर यह इजाजत दी गई है कि क्योंकि मर्द घर का कव्वाम होता है, जिम्मेदार और पावरफुल होता है, वो इस तरह के अप डाउन को संभाल सकता है, इसलिए मर्द को यह इजाजत दी गई। औरत कव्वाम नहीं होती, वो इस तरह के अप डाउन को नहीं संभाल सकती, इसलिए उसे नहीं इजाजत दी गई कि कोई मोमिन औरत किसी अहले किताब मर्द से शादी कर ले। अलबत्ता जिसको इजाजत दी गई उसको तंबीह कर दी गई है कि तुम्हें तुम्हारे एक एक्स्ट्रा सलाहियत की वजह से इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन खतरा तुम्हारे सर पे क्या हो रहा है, मंडला रहा है। उस मामले में मोहतात रहने की जरूरत है।
उसी कहा गया वमन यकफुर बिल ईमान, जो ईमान के साथ साथ कुफ्र कर बैठे। अब तक तो ईमान वाला था, अहले किताब बीवी मिल गई तो उसके साथ रंग रलियां और दूसरे खेल तमाशे में जायज नाजायज की परवाह खत्म। तो ये गोया ईमान के साथ कुफ्र करना हो गया, कुफरिया तर्ज अमल अख्तियार करना हो गया। तो ऐसे शख्स कहा जा रहा फकत हबिता अमल, तो उसका अमल क्या हो जाएगा, जाया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ईमान की कोई वक़्त नहीं है जो हमको कंट्रोल में न रखे, हमको बिगाड़ की तरफ ले जाए, फिर होना ना होना बराबर है। तो ऐसे शख्स का अमल क्या होगा, जाया हो जाएगा। बज़ाहिर तो वो रहेगा मोमिन और बहुत सारे मोमिनाना आमाल अंजाम भी देगा, लेकिन बेस जब बिगड़ गई तो फिर वो काउंटिंग में नहीं आता, वो काउंटिंग में नहीं आता। ये कहा गया फकत हबिता अमलहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में क्या होगा, खसारे में होगा। दुनिया में तो हो सकता है काउंटिंग चलती रहे, हाँ ये मोमिन है, हाँ ये मोमिन है, ये मोमिन है, ईमान का दावा करने वाला है, लेकिन वहां वो सब चलेगा नहीं। वहां तो जो अंजाम मुकद्दर है वो होकर रहेगा। ठीक, अब आगे कहा जा रहा है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा कुंतुम इला सलाति, जब तुम नमाज की तरफ खड़े हो, नमाज पढ़ने के लिए चलो बढ़ो, फग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को क्या करो, धुलो, व अयदीकुम इलल मराफिक, और अपने हाथों को धुलो केहनियों तक, व अयदीकुम इलल मराफिक, दाल के बाद ये है, जमा है ये, अपने हाथों को धुलो कहाँ तक, केहनियों तक। ठीक, वमसहू बिरुऊसिकुम, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसह करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को टखनों तक हो। गोया वजू के 4 फराइज बताए गए, चेहरा धुलना, दोनों हाथ केहनी तक धुलना, सरों का मसा करना, और पैर को टखने तक धोना, ये 4 फराइज बताए गए। ठीक, कह रहे हैं। अब इसमें एक सवाल टिपिकल आता है कि जैसे कहा गया अपने चेहरे को धुलो, तो चेहरे का इतलाक कहाँ तक होता है, यानी यहाँ सर के बाल से यहाँ तक ये जो चीजें दिखती हैं, और इधर इस कान से इस कान तक, या उसके अलावा चेहरे में यही कहते हैं, हाँ? फेस में यही दाढ़ी से ऊपर के हिस्से का ये मतलब ये है। दाढ़ी से ऊपर के हिस्से का आता है। वैसे ही अगले जुमले में सवाल है कि केहूनी तक, तो केहूनी का इतलाक कहाँ तक होगा, जहाँ खत्म हो रहा है वहां, या जहां अगला शुरू हो रहा है वहां, बीच में तो थोड़ा सा गैप होता है। हाँ? वैसे ही टखने में इतलाक कहाँ तक होगा, टखना जहां से शुरू हो रहा है यहीं तक धुलना है, या ऊपर तक धुलना है जहां खत्म हो रहा है टखना, जहाँ टकना खत्म हो रहा है। अब इस बाब में 2 राय, कोई कहता है कि ऊपर तक यानी अगला शुरू होने से पहले तक, और कोई कहते हैं जहां खत्म हो रहा है वहीं तक। ये सब जुज़ई इख्तिलाफ है, इसमें पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया, कभी कभी ये सब बहुत बारीकी छांटने वाले देख करके उलझते, क्या करते हैं, उलझते। दलील इसकी जो सबसे बड़ी है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन किया क्या, केहूनियों को कहाँ तक धुला,
अगला शुरू होने तक, टखने को कहाँ तक धुला, टखना खत्म होने तक, चेहरे को कहाँ तक धुला, पेशानी के बाल से ठोड़ी तक, या कान के इस जड़ से इस जड़ तक, अगर इतना धुला तो गोया वही उसकी असल तशरीह है, वही उसकी असल वजाहत है। हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, अपना प्यासी घोड़ा नहीं दौड़ाना चाहिए। ये उसकी दलील प्रैक्टिकल। अब उसके बाद जो दूसरी चीज समझने की है वो ये है कि वुजू करने को तो हमने कर लिया, लेकिन वुजू ही कुल है या उसके अलावा भी कुछ है? वुजू ही कुल है या उसके अलावा भी कुछ है? फिर ये कि वुजू कब तक रहता है और कब तक नहीं रहता, तो उस तरह की बहसें कुछ आगे आई। मसलन कहा जा रहा है इन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरू, अगर तुम क्या हो, जुनबी हो। जुनबी का मतलब क्या होता है? इंतहाई नापाकी, चाहे बीवी के पास जाने की वजह से या एहतराम होने की वजह से नापाक हो जाए। अब ये नापाकी की वो शक्ल है जिसमें वजू काफी नहीं है, इसीलिए कहा गया फत्ताहरू, अच्छी तरह का। तो खूब पाकी हासिल करो। अब खूब पाकी का मतलब है कि वजू के साथ साथ असलन गुस्ल होना चाहिए। गुस्ल जब हम करते हैं तो वजू तो होता ही होता है, लेकिन उससे बड़ी पाकी हासिल करनी। तो ये एक आम हालात की पाकी है जो वजू की शक्ल में हासिल करते हैं, और ये खास हालात की पाकी है जो बड़ी नापाकी की सूरत में हम हासिल करते हैं। इसलिए कहा गया इन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरू। अब ये बड़ी नापाकी आई, बड़ा काम हवाले हो गया, नहाएंगे नहीं जब तक तब तक पाक ही नहीं होंगे। तो अगर कभी नहाना मुश्किल हो जाए तो क्या करें? इसका जवाब दिया गया है व इन कुंतुम मरदा, अगर तुम क्या हो, मरीज हो, नहाना मुश्किल है, औ अला सफरिन, या सफर में हो, वहां नहाना मुश्किल है, पानी नहीं मिल रहा है, नहाने की जगह नहीं मिल रही है, कोई भी वजह हो, औ जाआ अहदुम मिनकुम मिनल गायति, या तुम में से कोई क्या करे, आए नशेबी जगह से। गायत माने हम लोग क्या करते हैं, पेशाब पखाना की जगह से, लेकिन असलन गायत के माने है नशेबी जगह। नशेबी जगह का मतलब है कि पेशाब पखाना ऐसे ही नशेबी जगह में करना चाहिए। नशेबी जगह में करने से पर्दे का एहतमाम भी रहता है और गंदगी से बचाव भी रहता है। अगर आप बिल्कुल ऐसे पत्थर पे पेशाब करें, ढाल नहीं है, तो छींट पड़ेगी। पखाना करें तो भी छींट पड़ने का इम्कान है अगर आपको पतला पखाना हो रहा है। लेकिन अगर ढाल है तो वो आगे बह जाएगा, जिधर ढाल है, जिधर नशेब है, फिर आप उससे ज्यादा महफूज रह सकते हैं। इसलिए भी कहा गया है मिनल गायत। तो इसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए, वरना हम लोग तो बैतुल खला बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो सब लफ्ज आना चाहिए। कुरान ने एक नया लफ्ज इस्तेमाल किया है, मिनल गायत। असल उसके पीछे ये रीजन है, ये हिकमत है। और आगे क्या कहे, वला लामस्तुमुन निसाअ, या तुम क्या करो, औरतों को छुओ। यहाँ पे कई मसला को छू देंगे तो भी क्या हो जाएगा, बड़े नापाक हो जाएंगे या छोटे? छूने से मुराद क्या है? हाँ, असल चीज ये है कि आपके छूने की शक्ल क्या है, नॉर्मल शक्ल है या खास शक्ल है। अगर नॉर्मल शक्ल है तो आप तो कुछ नहीं, जैसे सारे लोग वैसे वो वजू भी नहीं टूटता है, वजू भी नहीं टूटता। घरचे बाद सहाबा की राय है कि टूट भी जाता है।
बात सहाबा की राय है कि टूट भी जाता है, औरत को छू ही देने से, लेकिन वजू टूटता है, गुस्ल लाजिम नहीं आता। लेकिन जमहूर की या अक्सर की राय ये है कि नहीं, वजू भी नहीं टूटता। अब ये कि वजू टूटने और ना टूटने को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना? उसको डिफाइन करने के लिए जो लोग कायल हैं कि वजू टूटता है या नहीं टूटता, वो कहते हैं कि शहवत के साथ छुआ तो टूटेगा, शहवत के साथ नहीं छुआ तो नहीं टूटेगा। लेकिन ये सब लोगों के इज्तिहादात हैं, ऐसी कोई सराहत कहीं हदीस में और कुरान में नहीं। इस तरह के फुरूई इख्तिलाफ में आपको जो अच्छा लगे अमल कीजिए, कोई मसला नहीं। एक हदीस भी तो है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहते हैं, आयशा रजी अल्लाह अन्हा का पैर आगे मतलब रहता अनाज है, मतलब जगह कम है, वो फैला लेती है, तो समेट वजू लेती वहाँ पे नहीं टूटता, वो हाथ लगाते हैं और पैर समेट लेती हैं, तो वहाँ हाथ तो नहीं भी लगाएं, अंदाजा हो जाए तो भी वो समेट सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे दलाइल हैं जिसकी रोशनी में यह है किसी छू देने से वजू नहीं टूटता। वजू नहीं टूटता। और यहाँ असल में खास छूना मुराद है, उस सूरत में नापाकी होती है और उस सूरत में गोया पाक होने के लिए नहाना जरूरी होता है। अब आगे ये बताया जा रहा है कि अगर इस तरह के मसाइल आ जाएं, इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए और पानी ना मिले या पानी इस्तेमाल करना मुमकिन ना हो, मरीज है, पानी तो है लेकिन इस्तेमाल करे तो और बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, पानी इस्तेमाल करना मुमकिन ना हो, तो अल्टरनेट क्या, मुतबादिल क्या, उसी को कहा गया फलम यजतजिदू मान, बस तुम ना पाओ पानी, फतयम्ममू सईदन तय्यबन, फतयम्ममू सईदन तय्यबन, बस तुम तयम्मुम करो सईद तय्यब से। अब ये सब लफ्ज जो है हमारे इस्तिलाह वाली हो गई, वरना तयम्मुम के माने असल में अरबी में क्या आते हैं, कस्द करना, इरादा करना, बस तुम इरादा करो, कस्द करो, रुख करो। सईद के माने क्या आते हैं, उभरी हुई चीज, उभरी हुई चीज, तय्यबन जो पाक हो, ये लफ्जी माना है इसका। और हम बामुहावरा तर्जुमे में क्या करें, बस तुम तयम्मुम करो पाक मिट्टी से, ये हमारा बामुहावरा तर्जुमा है हमारे अपने माहौल और पस मंजर के लिहाज से, लेकिन ये इसका लफ्जी माना नहीं। लफ्जी माना क्या है कि अगर पानी नहीं मिल रहा है तो अब तुम मिट्टी ढूंढो, और मिट्टी भी ऐसी होनी चाहिए जो उभरी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो पाक हो। अब उभरी मिट्टी और पाक होने की जो शर्त है उसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो गड्ढे वाली मिट्टी होती है ना, वहां गर्दो गुबार और दूसरी गंदगियां आके उस पर जमा हो जाती है। हम तो सिर्फ ऊपर से छू करके मसा करते हैं ना, तो वही गंदगी छूएंगे। लेकिन जो उभरी मिट्टी होती है, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो चूना हो, चाहे कुछ और हो, ये सब मिट्टी के कबील में आती है ना। उभरी होती है, उसपे इस तरह के गर्द गुबार नहीं जमते, गंदगियां नहीं होती, वो सब फिसल जाती हैं या उड़ जाती हैं या किनारे हो जाती हैं, उसके दामन में होती है। उस पर हाथ डालने का मतलब ये है कि जो पाक हिस्सा है वही खुला हुआ है, उस पर हमने हाथ डाला। अब तयम्मुम से ऐसा तो नहीं होता कि हमने उस पर हाथ डाल लिया तो वो हमको पाक कर देती है। ये असलन तयम्मुम का जो हुक्म है वो सिर्फ पाकी के एहसास को जगाए रखने के लिए है ना, पाकी के एहसास को जिंदा और बाकी रखने के लिए है कि हम कम से कम उस एहसास से गुजर जाते हैं तो एक गनीमत शक्ल पैदा हो जाती है, वरना जाहिर है कि उससे पाकी तो नहीं हासिल होती। इसीलिए ये है कि ये पाकी सिर्फ उस वक्त तक है जब तक कि कोई रुकावट है। जैसे पानी मिल जाए आप वजू शुरू कर दीजिए, जैसे बीमारी ठीक हो आप वजू शुरू कर दीजिए। उसी को कहा गया फतयम्ममू सईदन तय्यबन, बस तुम इरादा करो उभरी हुई पाक मिट्टी का। ये है अब पूरा मफहूम, और उससे तुम क्या करो, तयम्मुम कर लो। अब इरादा करने के लिए तो कह दिया गया, लेकिन उसकी शक्ल आगे बताई गई। क्या
फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु, यानी उस मिट्टी का इरादा करो और उस मिट्टी से अपने हाथों और अपने चेहरों का मसा करो, यानी मिट्टी पे हाथ रखो और उसको अपने चेहरे पर और अपने हाथ पे फेर। तयम्मुम इतना ही होता है, पैर धुलना माफ, एक एक बार कर लिए तब भी काफी है। एक बार कर दिया वही काफी। लोग तसल्ली के लिए 3 बार करते हैं, लेकिन एक बार काफी। यहाँ नहीं कहा गया 3 बार करना है। अल्लाह के रसूल ने एक ही बार किया है, लेकिन हमको तो कभी कभी ज्यादा तकाजा होता है, तो जैसे खूब नफिल पढ़े जाते हैं वैसे वो भी किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे अल्लाह ताला कह रहा है मा युरीदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरज। ये सब जो हिदायत हैं कि वजू करो, नहाओ, ये करो, वो करो, ये सब तुमको परेशानी में डालने के लिए नहीं है। अल्लाह ताला परेशानी में डालना नहीं चाहता। उसने ये जो नरमी दे दी है असलन उस परेशानी से तुमको बाहर निकालने के लिए है। और जो हुक्म है वजू करने का और नहाने का, बज़ाहिर ये लगता है कि वो एक मुश्किल चीज है, एक लोड है। ऐसे भी नमाज पढ़ ले तो अल्लाह की इबादत ही तो है, जिक्र ही तो हो जाएगा, लेकिन वो भी असलन परेशानी से निकालने के लिए, परेशानी में डालने के लिए नहीं है। इसलिए आपके बदन के जो हिस्से खुले हुए उन्हीं को धुलने के लिए कहा गया है, चेहरा, हाथ और पैर। अब इनको अगर आप दिन में ना धुलें, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, सारी गर्दो गुबार इन पे पड़ती रहे, आपकी जिल्द खराब नहीं होगी, मिट्टी जम जाएगी, मिट्टी मैल जम जाएगा, फिर तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी। तो ये तो हरज से बचाने के लिए, हरज में डालने के लिए नहीं। लगता है कि हरज में डाल दिया, 5 बार धुलवाया, नहलवाया, लेकिन असलन वो क्या है, ये सब हरज से बचाने के लिए, हरज में डालना नहीं चाहता अल्लाह ताला। तो इस एंगल को भी समझना चाहिए। वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, लेकिन अल्लाह चाहता है कि वो तुम्हें पाक करे, इसलिए उसने ये सब लाजिम किया है। वलयुतिम्म निअमतहु अलैकुम, और तुम्हारे ऊपर क्या करे, अपनी नेमत तमाम कर दे। नहीं बताता परेशान रहते, बता दिया और एक राह सुझा दी, ये भी एक अल्लाह की नेमत है, और उसके जरिए तुमको एक सुकून और एक इत्मीनान और एक सेहत की राह मिल गई। लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्रगुजार बंदे बनो कि अल्लाह ने बगैर रहमत में डाले हुए पहले ही से ये सब तरीका बता दिया, जिससे हम रहमतों से महफूज रहते हैं। इसलिए हमें इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब उसके बाद आगे कहा जा रहा है वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर की है, वह मीसाक़हु, और अपने उस अहद को, अल्लज़ी वासक़कुम बिही, जो उसने तुमसे बांधा है। किसने? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने इतनी नेमत की तो कुछ जिम्मेदारी भी हमारे साथ डाली है ना, कुछ वो हमसे चाहता भी है। तो अब शुक्रगुजारी का और एहसान मंदी का तकाजा क्या है कि हम उसकी नेमत की कदर करें, उस नेमत को तस्लीम करें और उसके तकाजे के तहत जो उसकी बंदगी बजा लानी चाहिए वो बंदगी बजा लाएं। उसका इजहार सबसे पहले क्या होगा? इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताना, जब तुम कहो कि हमने सुना और मान लिया, फॉलो किया। वरना कहो कि जब तक हम तजर्बा नहीं करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक हमको इत्मीनान नहीं होगा, तब तक हम कैसे मान लें? ये गोया अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम की नाकदरी के मुतरादिफ है। उस वक्त तक पता नहीं कितना हम खो चुके हैं। हम करके देखें, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, लेकिन उस वक्त के इंतजार में कितना नुकसान उठा चुके हैं। इसलिए कहा गया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो,
بے شک اللہ جانتا ہے جو سینوں میں ہے. یعنی یہ احکامات جو دیے جا رہے ہیں بظاہر یہ بوجھ اور لوڈ لگیں گے، اور ان سے بچنے کی جو تم کوشش کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زیادہ سہولت پسند اور عیش پسند ہو گئے ہے نا. اس لیے ٹال مٹول کر کے تجربہ اور جانکاری اور فائدہ اور نفع نقصان کو چیک کرنے کے بعد اپنانے کی بات کرتے ہیں. اللہ نے جب کہہ دیا اور اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو، اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کی بات کے معاملے میں قیل قال کی کیا ضرورت ہے؟ کرو اور دیکھو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، ہو جاؤ اللہ کے لیے کھڑے رہنے والے، خوب کھڑے رہنے والے. مبالغہ ہے قوام، علام کی طرح، علامہ کی طرح. یعنی اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کے لیے ہمہ وقت چوکس اور تیار رہو. اس میں کوئی ڈھیل سستی اور اعراض اور کنارہ کشی یہ سب درست نہیں ہے. شہداء بالقسط، اور انصاف کے گواہ بنو. انصاف کے گواہ بنو کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جن کو پہلے شریعت دی گئی تھی اور اس میں انہوں نے بہت کچھ بدل لیا تھا، اور ایک طرف اللہ کے رسول ہیں جن کے ذریعے اب شریعت دی جا رہی ہے. تو جتنا انہوں نے بدلا تھا ان سب کو درست کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ مزید جو ضرورت ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے. ایسی صورت میں ایک سوال اٹھتا کہ پہلے والا مانے یا یہ والا مانے. تو کہا جا رہا ہے کہ انصاف کے گواہ بنو کا مطلب کہ پہلے والے میں کیا صحیح کیا غلط تم لوگ خوب جانتے ہو، اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے تحریف کی ہے. اور یہ جو نبی پیش کر رہا ہے اس میں اصلاً انہی تحریفات کی اصلاح ہے نا. تو اگر حقیقت پسند بنو تو جو صحیح بتا رہا ہے یہ اسے تمہیں مان لینا چاہیے. انصاف کا تقاضا یہ ہے، اور اسی کو تسلیم کر لینا چاہیے، اسی کی گواہی دینی چاہیے، اسی کو اپنانا چاہیے. اس لیے کہا گیا شہداء بالقسط. ورنہ اگر اصلیت میں مبتلا ہوگے، باپ دادا والا یہ چاہے غلط ہے تو پھر اس کے بھگتان کے لیے تیار رہو، اس کا نقصان جھیلنے کے لیے تیار رہو. اسی لیے آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ ماننا نہ ماننا حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے، انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. کسی بھی طرح کی دشمنی، کینہ، بغض، حسد، تعصب کا اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے. اہل کتاب کیوں نہیں مان رہے تھے؟ محمد تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، تم کیسے نبی مان لیں؟ محمد کہہ رہا ہے کہ قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا. تو یہ تو ہمارا والا چینج کر رہا ہے، تو ہم کیسے مان لیں؟ اصل بات یہ ہے کہ محمد چینج کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ہی نے تو اسے قبلہ قرار دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبلہ قرار دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے والے احکامات دیے تھے، اللہ تعالیٰ آج بھی یہی احکامات دے رہا ہے. اس میں محمد کا دخل کیا ہو گیا؟ اپنے اور پرائے کا دخل کیا ہو گیا؟ یہ سب تو اللہ کا ہے. اللہ کی پہلے مانتے تھے تو اب بھی اللہ کی مان لینا چاہیے. بیچ میں محمد کو لا کر کے بہانے بازی کرنا یہ صحیح نہیں. اسی کو کہا گیا لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے، مجبور نہ کرے، اکسائے نہیں. الا اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف پر قائم نہیں رہو، صحیح بات کو نہ تسلیم کرو. اے دلو، صحیح بات کو مانو، اعتدال پہ رہو، حق پر رہو. وہ اقرب للتقوی، یہ اللہ سے ڈرنے سے قریب تر بات ہے، اس کا تقاضا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کیا ہے؟ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یعنی کیوں تم مان رہے ہو اور کیوں تم ریجیکٹ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو باخبر ہے. تمہاری نیتوں کا حال، تمہارے ارادوں کا حال اسے معلوم ہے. اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے کہ تم دنیا کو تو بے وقوف بنا لو گے، اللہ کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. اس لیے اللہ سے ڈر کر کے حقیقت پسند بنو اور قبول کر لو.
मसलन इस सूरे में खिताब किससे है? अहले किताब से है। और उनके यहाँ जो बहुत सारा बिगाड़ था उसकी इस्लाह के तनाजुर में जो सही अहकामात हैं वो दिए जा रहे हैं, जो सही अहकामात हैं वो दिए जा रहे हैं। ये सब अहकामात भी उसी कबील के हैं, बहुत कुछ उन्होंने बदल डाला था। ये सब अहकामात भी उसी कबील के हैं, बहुत कुछ उन्होंने बदल डाला था। और ये सब अहकामात भी उसी कबील के हैं, बहुत कुछ उन्होंने बदल डाला था। अब वो एक लंबा मौजू है, उनका जो कुछ है एट प्रेजेंट और जो यहाँ बताया गया है उसमें कहाँ कहाँ टकराव है या फर्क है। लेकिन उसूली बात इतनी सी जानिए कि उन्होंने बहुत कुछ बदला था, उन सबको दुरुस्त करके जो सही है वो इस वक्त बताया जा रहा है। अब ये गोया एक तरह से फाइनल शक्ल है। क्या है? फाइनल शक्ल है, इसलिए कि आखिरी शरीयत है। अब गोया रहती दुनिया तक इसी को मानने में सबकी निजात है, इसी को अपनाने में सबकी खैरियत है। और कोई अगर इसको रिजेक्ट करता है तो फिर उसकी खैरियत नहीं है। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम किसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, और जो लोग नहीं गुजार रहे हैं उन्हें भी तौफीक दे कि वो समझ करके इस चीज़ को अपना लें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि